Okay, it's live now. Caught in the little stories around us. But there is a part of us that lives beyond the cage. And allow yourself to just drop all those stories, all those memories, and just allow yourself to dwell in that pure, peaceful elation of being a soul outside the cage. If I want to step outside of the cage, I have to bring the light of awareness. I have to understand that I am not the stories that happen around me. I have to understand that I am so much more than the material world that surrounds me. Because I've been in this world for so long, I've gotten used to seeing concrete walls, to getting caught up in my own little corner of the world and my own community and my own little dramas. And sometimes those become a cage around me. I can get caught up in the daily activities of life, the situations and circumstances, the to-do list. And those things have a way of making me feel confined. Another cage is memory. Sometimes we can hold on to the pains of the past. But if I truly want to step outside of the cage, I have to understand that my biography, my story is just another costume I wear in this world. I need to wear the world like a loose garment and know that although we are here as souls to tell our stories, our biographies, our situations, they're just costumes. It's just a stage. I can easily step off that stage right now and just drop those stories, drop those memories like that loose garment. Take a moment now to remember that you truly are
pure, conscient light, a divine, radiant being, full of joy, full of lightness, with a mind that is fresh and clean and peaceful. This is who you really are. And when we come to this earth, we take on the costumes and the bodies, but if we can keep the awareness of being souls, we can enjoy creating our stories on this earth with innocence. When I keep the awareness of who I truly am, whilst I'm playing my roles, whilst I'm moving from moment to moment, then I can realize that nothing on this earth defines me. And life then becomes a chance to express the soul in everything I do. Then there are no cages, there are only chances to pour my spirit through the precious moments of my life. I can step outside the cage when I realize that I am not defined by roles, by outcomes, by memories, but that the world is a loose garment, and I, the soul, am here to pour my spirit into every story, into every moment, and into as much of my journey as possible. I am free. I have always been free. Take a moment to experience the truth of who you truly are. Take a moment to experience the joy of innocence that lives within you. The innocence of the child that knows no position, that identifies with no situations. The cage, in fact, doesn't really exist. It's built of thoughts and perceptions, and it only exists when I lose touch with the reality of my eternal, true nature of being a soul. So let me know that my biography, my stories, the situations that happen around me, they're all just loose garments. When I realize this, I can move through my life with the joy of a child and the wisdom of a sage, living moment to moment outside of the cage. Okay. Om Shanti. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, so there's a little bit of an issue, a couple of technical issues we're working out. The translation for Hebrew is under Russian. So those of you wanting to listen in Hebrew, note that. And then we're having a few issues with the live stream that we're trying to fix. So let's just take 1 minute.
Luckily, we Brahmins are good at taking 1 minute. The live stream is on. Okay, we're okay to go? Yes. All right, everyone. So welcome to this second family meeting. Bapdada's guidance for his Sekila Day children facing situations. And our leader in this is the server, the family server, and the amazing Brother Brij Mohan, who's going to reflect with us on these issues. So can we bring Brother Brij Mohan on the screen? Om Shanti, Brother Brij Mohan. Unmute. Needs to unmute you. Thank you. Now, based on our pilot in June, we have made some changes. We're getting some feedback. Okay, so the changes we've made are: one, Brother Brij Mohan's going to speak in Hindi, and then the translators will work with the English translator. To the tech team, we're getting some feedback. Two, we started a little bit early, and we're going to try to do this in 75 minutes. And then we'll also take your feedback this time, right? So you tell us after the call what would work better for you. So we're also live streaming. Okay, and I'm not sure about the... So we have several categories of questions, and I'm going to go through these categories. So the first question, Brother Brij Mohan. Can Brij Mohan Bhai please share on the original way of practicing soul consciousness as Brahma Baba and the Dadis? Got the question? Right. Om Shanti. ब्रह्मा बाबा और दादियां उस समय जो सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते थे, तो शिव बाबा ने उनको एक अलग तरह का ब्राह्मण संसार, ब्राह्मण परिवार रच के दिया था। मैं बोलता जाऊं, ये कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन है जी? So let me check in here. I wasn't planning to have a headphone on to listen to Neha. So if I'm going to have to do that, then give me a minute to do that. You can go ahead, Brother Brij Mohan, because I think I know what you're saying, but give me a minute. तो उन दिनों में बाहर के संसार का बाबा के बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं था। अलग से एक ईश्वरीय परिवार और ईश्वरीय संसार था, और यही लक्ष्य दिया गया था कि शिव बाबा से शक्ति लेकर हमको अपने आप को भी, जिसको कहा जाता है स्व राज्य अधिकारी, सेल्फ सॉवरेन बनाना है। और जितना जितना हम सेल्फ सॉवरेन स्व राज्य अधिकारी बनते जाएंगे, उसी अनुसार हम विश्व राज्य अधिकारी अर्थात सॉवरेन बनते जाएंगे। उन दिनों में और कोई भी काम नहीं था। दिन का साधारण दिनचर्या, उसको भी एक प्रकार से अलौकिक बना दिया गया था, क्योंकि आत्मस्मृति फुल टाइम रखनी होती थी। मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा हैं, और चाहे हम
भोजन कर रहे हैं तो आत्मा ही बाबा की याद में भोजन कर रही है। इस प्रकार का वातावरण था। ये कहें कि अंतर्मन में तो आत्मस्मृति हर वक्त रहती थी, क्योंकि बाहर का कुछ था ही नहीं। और बाबा ने दिनचर्या भी ऐसी अलौकिक बनाई थी। लेकिन विशेष तौर पर भी बहुत अलग अलग समय पर ये बैठ करके, आपस में इकट्ठे बैठ करके ज्ञान चर्चा, वो भी आत्मस्मृति के लिए होती थी, करते हुए खास आत्माएं आत्म रूप में रह करके और शिव बाबा को, अपने घर को, अपने स्वर्ग को याद करते थे। अर्थात वो पीरियड कंप्लीटली इस प्रकार के साधना का था। अब ठीक है, ये ठीक चल रहा है। हाँ जी, ठीक चल रहा है। मैं तेज तो नहीं हूँ, फास्ट तो नहीं हूँ। नहीं, अच्छा। Good, good. तो अब इससे प्राप्ति क्या होती थी? तो प्यारे बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने दादियों को यही लक्ष्य दिया था कि अगर आप अधिकारी हैं तो आप अधीन नहीं हो सकते। अगर आप सॉवरेन हैं तो आप सब्जेक्ट नहीं हो सकते। इसी प्रकार से अगर आपको आकर्षण करने वाला होना है तो आप स्वयं आकर्षित नहीं हो सकते। अर्थात अगर आपको लाइन में लगाना है तो आप स्वयं लाइन में नहीं लग सकते। इस प्रकार का लक्ष्य दिया जाता था कि हम अपने ऊपर स्वराज्य अधिकारी, सेल्फ सॉवरेन बने। Okay, let me just check with everyone and see if your translation works. Yeah, everyone? Okay. What about Spanish? Trying to mute myself. Okay. ठीक है। Is it okay? Yes, it's okay. Log out. अब मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ I want to add one more thing in this. कि वो ये है कि बाबा और मम्मा तो जो जो शिव बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे, उसको कर लेते थे, तुरंत लेते थे। और बाकी जितने हैं मेरे जैसे, वो नंबर वाइज करने का सोचते थे कि करेंगे। तो यही फर्क था कि वो तो करके करवाने लग जाते थे और हम बुद्धि में सोचते थे कि हाँ, मुझे सेल्फ सॉवरेन बनना है। कई चीजों में बनते थे, कई चीजों में पोस्टपोन कर देते थे कि हमारे संस्कार अभी स्ट्रांग हैं, नहीं सकते। कई चीजों में फ्यूचर के लिए सोचते थे अलबेले होकर कि बन
इसी तरह से फर्क था। So this was the difference. Okay. आंसर इज ओवर। I think we're good. So, getting to some. Okay. Madhavi, are you good? Okay. I'm having trouble getting. Brother Brij Mohan, I want to ask you a question about the well-being of Brahmins. What are the reasons that so many of Baba's children are suffering from depression? How do we help them? Should we refer them to outside professionals if they have not been helped with meditation and knowledge? Did you understand the question? Yes. Well, first of all, when someone becomes Baba's child, he gets into an altogether different framework, which is described, जो सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा था, सॉरी। जब भी कोई बाबा का बच्चा बनता है, उसकी एक अलौकिक दुनिया हो जाती है। उसकी जन्म पत्री बाबा के हाथ में हो जाती है और उसका जो जीवन का लक्ष्य है वो संसारिक आत्माओं की तरह एक जन्म का ना होकर, इस शरीर से संबंधित ना होकर, वो आत्मा से संबंधित और अविनाशी यानी पूरे साइकिल का हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी टोटल मेंटल कंपोजिशन बदल जाती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी बाहर का प्रोफेशनल, चाहे वो कितना भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, वो किसी भी ब्राह्मण के किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी थिंकिंग, उसकी अपनी ट्रेनिंग, उसकी अपनी एक्सपर्टीज बहुत लिमिटेड तरह की होती है और वो उसी स्कोप के अंदर के पेशेंट्स का इलाज कर सकता है। तो मैं ये बहुत फर्मली, बड़ी दृढ़ता से समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का तो संकल्प भी नहीं करना चाहिए कि हम अपने किसी भी ब्राह्मण को बाहर के किसी ऐसे डिप्रेशन आदि दूर करने वालों के पास ले जाएं, क्योंकि इससे तो उस करने वाले को डिप्रेशन होने का खतरा हो सकता। दूसरी बात, ब्राह्मण और डिप्रेशन, ये दो चीजें मेल नहीं खाती, क्योंकि प्यारे बाबा ने हमें अपनी गोद में लिया है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक सर्जन भी हूं, और वास्तव में शिव बाबा हमारा सर्जन भी है, फिजिशियन भी है। वो दुनिया के लोग शरीर का इलाज करते हैं, परंतु बाबा आत्माओं का इलाज करता है। और बाबा कहता है
आत्माओं के अंदर ही कोई ना कोई प्रकार के रोग हैं, और आत्मा का ये डिप्रेशन भी कोई परमानेंट चीज नहीं है, क्योंकि एक बार कोई ब्राह्मण बाबा का बच्चा बन जाता है, एलिमेंट्री ज्ञान भी ले लेता है, तो उसके अंदर बीज पड़ जाता है बेहद का, और अपने ओरिजिनल स्मृति का, कि हम तो आनंद स्वरूप हैं, ब्लिसफुल है, हमारा नेचर ही ब्लिसफुल है। जैसे एक स्प्रिंग होता है वाटर का, उसमें तो पानी निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, उसके सूखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए अपनी उस स्टेज की स्मृति में उसके साथियों ने उसको लाना है, और हर एक की सिचुएशन देखकर कि किस कारण से वो डिप्रेशन में आते हैं, जिसका मूल कारण लो सेल्फ एस्टीम होता है, अर्थात आत्मस्मृति को उस समय वो विस्मृति में होते हैं। तो हमारे बाबा तो रोज मुरलियों में ऐसे ऐसे पॉइंट्स देता है कि एक व्यक्ति कोई डिप्रेशन में हो भी तो वो प्रफुल्लित होकर आकाश में उड़ने लग जाए, तो डिप्रेशन पहले तो होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो ऐसा लगता है कि बाहर की चीजों को देखकर, आउटसाइड वर्ल्ड को देखकर, अपने शरीर के आउटसाइड सर्कमस्टांसिस को देखकर, अपने फ्यूचर के बारे में चिंतन करके, बाबा कहता है कि मेरा श्रीमत की बजाय ज्यादा मन मत को चलाकर, ज्यादा सोचकर, व्यर्थ संकल्पों में जाकर, प्रश्नों में जाकर, ये क्या हो गया तो ऐसा होगा, ये हो गया तो ऐसा हो गया, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके उसका कंडीशन मेरे से बहुत अच्छा है, उसके रीजन लगाकर, इस प्रकार के व्यर्थ बातों के कारण जब व्यर्थ बहुत ज्यादा ऐड हो जाता है, असेंस थोड़ा होता है, तो असेंस ब्लिसफुल का काम कम हो जाता है और वेस्ट थिंकिंग का काम ज्यादा हो जाता है। इसलिए वो ब्लिसफुल स्टेज डिप्रेशन में बदल जाती है। मैं दोबारा कहूंगा कि ज्यादातर ये परचिंतन के कारण, अपने शरीर के भविष्य के कारण, बाहर की परिस्थितियों को देखने के कारण होता है। अगर हम अपने पूरे साइकिल का अपना ट्रैक देखें, किसको हमने अपनी जीवन नैया का पतवार दिया हुआ देखें, और शांति का अभ्यास करें, थिंकिंग को बंद करें, ज्यादा सोचने को, तो ये डिप्रेशन वैसे ठीक हो सकता है। अच्छे अच्छे गीत लगा सकते हैं, बाबा की मुरलियों के साथ बहुत तरीके हो सकते हैं। नॉर्मली लोनलीनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसे डिप्रेशन वालों का चाहे आपस में ग्रुप बना दें कि भाई तेरा डिप्रेशन क्यों है और तेरा डिप्रेशन क्यों है, उसको डिस्कस करके एक दूसरे का डिप्रेशन भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबका खत्म हो जाएगा। जैसे बुझे हुए दीपक होते हैं, उसमें एक दो लाइटेड हो तो बाकियों को भी रोशन कर देते हैं। डिप्रेशन मीन्स बुझा हुआ दीपक, और उमंग उत्साह मीन्स जगा हुआ दीपक। Okay. Thank you, Brother Brij Mohan. There's a lot there to think about. What about aging population? We have some who are asking, we have an aging population, and what are, in India, what's happening, and what should happen in the world to help care for our aging population? You see, as a matter of fact, aging is an asset. It is not a liability. Because they say old is gold. Where people in the world retire, from that point, Brahmin life begins. Because you have got maturity, you have got experience, and all those experience of the world
are only tragic, saddening, and painful. Oh, sorry. Brij Mohan, you have to speak in English, in Hindi. सॉरी, मैंने फिर इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। कहने का भाव ये है कि जो ओल्ड एज है, वृद्ध अवस्था है, वो कोई एक प्रकार की कमजोरी नहीं है, वो कोई एक प्रकार की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वृद्ध तो शरीर होता है। पहली बात जानने की ये है कि अगर कोई ये कहता है कि एजिंग, तो वो शरीर की तरफ देख रहा है, वो दादी जानकी की तरफ नहीं देख रहा है, वो हमारे सीनियर्स की तरफ नहीं देख रहा। हमारे तो आप 60 वर्ष के ऊपर ही बाबा की ये लाइफ शुरू होती है। दुनिया में भी, हमारे धर्म में भी कहा गया है कि वानप्रस्थी, इट मीन्स कि जब आप सारी दुनिया के अपने धंधे वगैरह दूर कर लें, 60 वर्ष की आयु के बाद आध्यात्मिक लाइफ शुरू होता है। और हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि एज बहुत बड़ी एसेट है। वही ज्ञान कोई छोटा बच्चा सुनाता है तो कहेंगे ये तो बच्चा है, हम तो बूढ़े हैं। इसलिए एज तो हमारे लिए एक एसेट है। तो ये सोचना कि एजिंग कोई प्रॉब्लम है और कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, दुनिया के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फैमिली वाले व्यक्ति को आइसोलेट कर देते हैं, बूढ़े लोग डिस्कार्ड हो जाते हैं, वो किसी पार्क में जाकर आपस में बैठकर प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके वाले घर में उसको स्वीकार नहीं करते। उनको एक प्रकार से सोचते हैं कि हमारे ऊपर बोझ है। पर यहाँ पर तो बाबा के ज्ञान में तो एजिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे लौकिक प्रबंध संबंध है नहीं। और अगर किसी को ये फियर है मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो बाबा के यज्ञ में परिवार में तो रिटायरमेंट एज ही नहीं है। हर एक Brij Mohan, let me ask you something. Wait. Let me ask you something. Yes, it's true that our spiritual stage should be ascending, and the daddies were amazing. But we're getting questions about both depression and aging, that with people, when they don't have the stage of the daddies, they're not able to use their spiritual knowledge to rise above, or they have really serious physical issues. What does the Yagya recommend? एक शब्द में है बिजी रहना। कि अगर किसी व्यक्ति को आप बिजी नहीं रखते तो फिर उसको ऐसी ऐसी बातों का ख्याल आता है। हम देखते हैं कि एजेड लोगों, वृद्ध लोगों के लिए वेस्ट में तो बुढ़ा घर बना देते हैं, उनको पैसा वैसा दे के खाने पीने का प्रबंध कर देते हैं। आप किसी भी ओल्ड एज होम में जाएंगे, वो कहेंगे हमें यहाँ प्यार नहीं है, हमें यहाँ सम्मान नहीं है, पैसा खर्च के कोई चीज मंगा लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हमें स्नेह मिले, हमें सम्मान मिले, हमें कुछ काम मिले, रिकॉग्निशन मिले। तो वो दुनिया में होता है। ये तो बाबा का परिवार है, और बाबा का परिवार में आप जानते हैं कि जितना एजेड होता जाता है उतना उसका रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है। अब हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड ब्रह्मा बाबा है। उसके बाद हम उसके जूनियर जो संभालते हैं उनको कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। तो हम एजेड को ही ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि हम शरीर को तो देखते नहीं। और जब कोई व्यक्ति आत्मा के रूप में उसको आप बिजी रखें, उसको आप संतुष्ट रखें,
उसको आप प्यार दें, उसको आप आइसोलेटेड महसूस ना होने दें, उसकी वर्थ को रिकॉग्नाइज करें, चाहे वो पौधों को पानी ही दे, कुछ भी करे, वेलकम डेस्क पे बैठा दे, कुछ भी करें, यंग के साथ ज्वाइन कर दे तो खुश रहे। इसलिए हमें पहले तो उनके अंदर से ये कॉम्प्लेक्स निकाल देना चाहिए कि एज कोई डिसएडवांटेज है। दूसरे, उनको आध्यात्मिक तौर पर बिजी रखना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उनकी इंद्रियां चंचल होती हैं, शरीर एक्टिव होते हैं। यहाँ तो बाबा कहता है शून्य में जाना है। जितना ज्यादा व्यक्ति वानप्रस्थ होगा, रिटायर्ड होगा, उतना उसके लिए आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना अच्छा है। हमारा तो सारा बैठे बैठे काम सारे वर्ल्ड का होता है। इसलिए इसकी थिंकिंग बदलकर हमारे सीनियर्स को एक प्रकार की आपस में गोष्ठी करनी चाहिए कि हमारे यज्ञ में तो एजेड की बहुत वैल्यू है। और बाबा, यहाँ तक ब्रह्मा बाबा कहते थे, मुझे याद है पांडव भवन आबू में जब ब्रह्मा बाबा थे तो वहां बहुत सारे रूम्स थे जिसमें एजेड लोग रहते थे। वो कुछ भी नहीं करते थे और केवल रेस्ट करते थे, यज्ञ के मेंबर थे। तो बाबा वहां जाया करते थे कमरों में, और बाबा कहते थे देखो मेरे जो एक्टिव बच्चे हैं वो तो बाहर जाके सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन एजिड मेरे बच्चों ने योग बल से अपनी आयु बढ़ा ली है। ये शरीर भी नहीं छोड़ते हैं और क्या कर रहे हैं कि योग बल से हेल्प कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा हमारे यज्ञ का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय योग बल है, और योग बल एजेड आसानी से उसको बढ़ा सकता है, उसका दान कर सकता है, उसके वाइब्रेशन भेज सकता है। अगर हर एक एजेड व्यक्ति अपना चार्ट रखे कि मैं ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो 2 दिन में वो अपने आप को रिच महसूस करेगा, उसका जमा का खाता जमा होगा, उसका माइंड फोकस्ड होगा, बाबा उसको मदद करेगा, वो हंसने लग जाएगा, डांस करने लग जाएगा। तो हमें देखना चाहिए हर एजेड व्यक्ति डांस करता, ऐसे प्रोग्राम बनाए जो सचमुच उनका मन डांस करे और तन भी डांस करे, और आप उसके साथ डांस करें, आपको मजा आएगा। ब्रह्मा बाबा ने इतने एजिड की पालना की है, किसी प्रकार से किसी का शरीर नहीं भी ठीक था, ब्रह्मा बाबा उसको जाके प्यार की दृष्टि देते थे। जैसे सिविल सर्जन किसी हॉस्पिटल में विजिट करता है तो आप उनको ध्यान रखिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी दिनचर्या बनाइए, तो ये बहुत खुशी का विषय हो जाएगा। लोग तो देखकर खुश होते हैं, बाहर वाला भी कोई आए और फैमिली में देखे कि एजिड लोग इनके इतने प्रसन्न हैं, तो उसके अंदर तो बहुत उमंग आ जाएगा कि मैं ब्रह्मा कुमार जरूर बनूं। So, thank you. You're focusing on the spiritual stage of the caregiver and of the aged one. And I know that for some are writing in the chat, it's complicated because some of them aren't in centers and families are trying to care, but that's very good counseling to help them be cheerful, feel useful, feel cared for, important, all of that. I want to, each of these we could take more time, but I really want you to think with us about the business of personal guidance for BKs in this highly charged political world. And the question, we've got a couple of questions. One of them, what is Baba's guidance for Brahmins regarding political situations? Many times the candidates are not just speaking about political issues, but about moral issues, about violence and war, about treatment of immigrants, about religious intolerance, and so on.
should BKs remain detached from politics in all circumstances, or is it permissible for us to become involved when the issues have moral dimensions? And if it's permissible, what kind of involvement might we have? Did you understand the question? I think yes. And you have to answer in Hindi, even though I ask you in To you, I am answering in English. Now, ये देखिए, पहली बात ये है कि पॉलिटिशियन जितने होते हैं वो मोरालिटी, एथिक्स, सत्यता इत्यादि उनके जीवन में होता ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग, यानी इलेक्शन इज फॉट, इसलिए उसमें तो युद्ध का बात आ जाती है। और वो एक दूसरे के लिए भी उनकी वीकनेसेस निकाल निकाल के एक दूसरे की पब्लिक को बताते हैं। जहां तक एथिक्स और मोरालिटी है, वो केवल एक टिंज देते हैं, थोड़ा सा उसमें एक ऊपर से डालते हैं मसाला, ताकि लोग समझें कि इन लोगों का एथिक्स और मोरालिटी से बहुत बड़ा ये ध्यान रख रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स शुरू हुआ, एथिक्स और मोरालिटी खत्म हुआ। इसलिए हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि आज की पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं सत्ता है या राजनीति है, तो राज सत्ता के साथ बीकेज है। कहीं भी किसी चीज में सत्ता हो, असेंस हो, कुछ बेटरमेंट का पॉसिबिलिटी हो, वहां बीकेज है। लेकिन आज की दुनिया में बिल्कुल राजनीति है। नीति मीन्स पॉलिसी, एक दूसरे को टेम्परेरीली, जैसे बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे टेम्परेरीली आप बाबा के आगे भी आके आप माफी मांग लेते हैं, या बाबा के आगे आके प्रण कर लेते हैं बाबा मैंने गलती की, लेकिन वो टेम्परेरी करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार की मॉरलिटी या एथिक्स की वो बात करते हैं, ये जैसे बहन जी ने कहा इमिग्रेशन इत्यादि ये वो, तो बाबा कहता है इसका रूट क्या है। उनको तो ये भी नहीं पता कि सारा वायलेंस, सारा वायलेशन कहाँ से, रूट क्या है। हम तो बाबा कहते हैं हमें पता है कि वे 5 विकार हैं, इसकी वजह से ये सारा है, और 5 विकारों को खत्म करने से ऑटोमेटिकली सारा खत्म हो जाएगा। तो हमारी एथिक्स मॉरलिटी की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। हम तो ऐसा नॉन वायलेंस एस्टेब्लिश करते हैं जो आधा कल्प तक चलता है, जहां पर पशु भी एक घाट पानी पीते हैं। और इन लोगों का एथिक्स मॉरलिटी तो दिखावटी है और बहुत शैलो है, और एक जन्म के लिए भी नहीं पूरा चलता है। इसलिए आप देखेंगे कि एक इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो एक दूसरे को भी टांग घसीटते हैं। इसलिए हमारी पक्का एडवाइस ये है कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को किसी भी कारण से आजकल के ये जो पॉलिटिक्स है, किसी उस ना तो उसको सुनना चाहिए, जैसे बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, बल्कि इसको अपने मन में लाना ही नहीं चाहिए, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहिए कौन जीता कौन हारा, क्योंकि सीढ़ी आगे को, नेक्स्ट सीढ़ी जो है नीचे उतरने वाली है, चाहे कोई भी हो जाए। इसलिए चेंज ऑफ बॉटल्स है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल जैसे कहा जाता, कुछ भी नहीं है। तो बीके अपना टाइम इसमें बिल्कुल वेस्ट ना करें, इसमें ध्यान ही ना दें। सबसे अच्छा है बाद में कोई बता दे हाँ ये जीत गया, अच्छा जी ठीक है, हमारे लिए 6 and half a dozen is the same. Okay, we renounce politics, right? Okay, I want to change topics. Brother Brij Mohan, in many parts of the world, in several parts, I don't want to say many, there is some friction
between the instrument and the BKs. And so I want to talk a little bit about this. I want to start by noting that when we had our June conversation, there was a question at the end where the BK said, what if my NC only sees my weaknesses and only sees weaknesses in me, but doesn't see weaknesses in himself or herself? And you gave a certain answer that they should see the strengths, but then you came back to me after and you revised that answer, which I want to share now. And what you said was, Baba says that if at a particular point a senior is arrogant, at that point of time, the senior is not a senior, but is ordinary. If the student tolerates it with the understanding, let me not get into the mode of that senior, then at that moment, the junior is more senior than the senior. Sometimes the junior can surpass the senior. And that is the way that Baba changes the status of the student according to the improvement in their state. Now, I just want to say, before I read the next question, we're getting a little feedback. Brother Brij Mohan, is there someone there with you who can mute when you're not talking so my voice doesn't reverberate back? Is there a person there with you? Okay. Is this better? Okay. So, Brother Brij Mohan, I'm going to read you this question and then I'm going to mute. So we have questions from the side of the students who feel, I would say, misunderstood or undervalued. And then we have questions from the side of the instruments who feel like they really need guidance. They're doing the best they can. Sister, about the previous question, we should be very clear that Baba has created a divine family. Do you want to talk in Hindi? सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ जो पिछली आपने बात की है कि हमें पहले यहाँ पर सीनियर जूनियर स्टूडेंट इत्यादि के बारे में अपने मन में बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ कोई ऑफिसेज हैं और उनके कोई ऑफिस बेरर हैं और उनको कोई गिवन पावर्स दी जाती हैं और वो पावर डेलीगेट करते हैं, उस पावर के अनुसार वो काम चलाते हैं। हमारे यहाँ ये बेसिक थिंग है कि वी आर ऑल, हम सब सेवाधारी हैं। शिव बाबा कहता है मैं विश्व सेवक हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं सेवाधारी हूँ। तो हमारा असली डेजिग्नेशन, चाहे सीनियर हम जूनियर कहते हैं, वो विश्व सेवाधारी का है। इसका मतलब है सबकी सेवा करना। अब सेवा में सीनियर वो होता है जो ज्यादा लोगों की सेवा करके उनकी जो भी कमी कमजोरियां दुख, उनकी जो भी आकांक्षाएं उसको पूरा करें। इसलिए हम इस एंगल से देखें कि ये एक परिवार है। अब परिवार में क्या होता है कि परिवार में मान लो किसी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लिया, उसका कोई अंग खराब है, डिसेबल्ड है, या कोई व्यक्ति बड़ा भी हो गया, यंग भी हो गया, किसी एक्सीडेंट में वो डिसेबल्ड हो गया, या कोई व्यक्ति वैसे ही मेंटली रिटार्डेड है, तो फैमिली में होता है। अब फैमिली वाले क्या करते हैं
रोज मुरलियों में आता है, ताजा मुरलियों में भी आ रहा है कि फैमिली में उसके लिए जो कमजोर है, जिसमें कोई ना कोई कमी नजर आती है, लेकिन उसको ओवरकम नहीं कर पाता, उसके लिए उनके अंदर ज्यादा मर्सी होती है, कंपैशन होता है, रहम होता है, उसका एक्स्ट्रा केयर किया जाता है। इवन गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने जो बैकवर्ड लोग होते हैं उनका केयर करती है, उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन करती है। हमारी तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, इसलिए हम किसी प्रकार का ऑर्डर या अथॉरिटी नहीं चला सकते कि मैं सीनियर हूँ तुम जूनियर हो, बल्कि ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में व्यक्ति अपनी अवस्था के अनुसार सीनियर जूनियर होता जाता है। अगर आप, जो बाबा ने कहा, वो बड़े सेवादारी हो तो आपको रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं है, लव मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे शैडो की तरह आएगा। यहाँ पर जैसे कहा जाता है, यू कैन नॉट कमांड डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड। तो इस एंगल से देखेंगे तो हमें, चाहे वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी हर एक स्टूडेंट होता है, और इनफैक्ट हम तो लास्ट बरस तक स्टूडेंट ही रहते हैं। चाहे मुझे टीचर का जॉब मिल जाए कि मैं बाबा की मुरली सुना दी है, एक्सप्लेन करना है एज एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम बेसिकली तो स्टूडेंट ही हैं, तो इसलिए स्टूडेंट टीचर का भी सवाल नहीं पैदा होता, सीनियर जूनियर का सवाल भी नहीं पैदा होता। अकॉर्डिंग मेरी स्टेज के मुताबिक सारे दिन में जब मैं अपने ऊपर राज्य करता हूँ तो मैं सीनियर हूँ, और मैं अपने ऊपर राज्य नहीं कर पाता, अधीन हो जाता हूँ, क्रोध के अधीन हो जाता हूँ, अभिमान के अधीन हो जाता हूँ, तो मैं जूनियर हो जाता हूँ। इस डेफिनेशन से हमको चलना है। शरीर को नहीं देखना है, व्यक्ति को नहीं देखना है, एक मोमेंट को नहीं देखना है, इस जन्म को भी नहीं देखना है, हमें अपना ओवरऑल साइकिल में अपने आप को फिक्स रखना है। इसलिए बाबा कहता है चक्कर घुमाते रहो घुमाते रहो, तो फिर आपको वो मोमेंट बहुत छोटा लगेगा, एक जैसे एक पासिंग इवेंट है, तो आपको उसका महसूसता नहीं आएगा। You know, I have to tell everyone on this call that Brother Brij Mohan did not want to be referred to as a senior brother. He asked us to refer to him as a Sevadari. So you can see from his answer his feelings on this. So, Brother Brij Mohan, I want you to listen to these questions with the understanding that the instruments and the BK students, and the BK students who are instruments, are all making effort to become perfect, Sato Pradhan. However, they are not there yet. And so their questions come from the space of what they're dealing with now. And I know your answer will address the Baba's highest guidance, but so I'm going to give you a question from a BK student, which is, what is the best way to proceed? And this is very close to the last question. When the NC of a country here says, I'm the boss, the one giving orders, no one can interfere, and you know that what is being said is not according to Baba's Shrimat, can an NC or a CC, I'm putting two questions together, create Mariadas by themselves according to the situations in the centers and the family? Do you understand the question? हाँ जी, हाँ जी। You see, मर्यादा, जो मर्यादाएं हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, दैवी मर्यादाएं हैं, ब्राह्मण परिवार की मर्यादाएं हैं, वो शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सेट की हुई है, वही मर्यादाएं हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई
अपनी मर्यादाएं क्रिएट करता है तो उसको कहा जाएगा कि एक सोल की क्रिएट की हुई मर्यादाएं। तो जैसे आप जानते हैं कि प्रकृति में माउंटेन बने हुए हैं, ओशन बने हुए हैं, रिवर्स बने हुए हैं, स्प्रिंग्स बने हुए हैं, वो प्रकृति के सदा काल से चलते आ रहे हैं। और जहां जहां मनुष्यों ने अपने डैम बनाए, अपने अलग अलग मैन मेड चीजें बनाई, उसके कारण से सारा नेचुरल एनवायरनमेंट अननेचुरल हो गया। तो ऐसी कोई मेरे पहले तो भाषा जो यूज की गई है कि मैं बॉस हूँ, मेरा ही चलेगा, इत्यादि इत्यादि, ये भाषा मर्यादा युक्त नहीं है और सुनने वाला उसको समझ सकता है। इस समय ये आत्मा सेवाधारी की बजाय कहाँ सेवाधारी, कहाँ विश्व सेवाधारी और कहाँ बॉस। हमारा तो एक ही बॉस है शिव बाबा और उसके बाद हमारे बड़े बॉस हैं। तो हमें तो अपना थिंकिंग करना नहीं, रूल के अनुसार चलना है, रेड बुक के अनुसार चलना है। इसलिए ऐसी कोई भी मर्यादा को क्रिएट करना ये डेंजरस होगा, क्योंकि टेम्परेरीली कई बार होता है कि टेम्परेरी व्यक्ति को लगता है ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन लॉन्ग रन में वो नुकसान कारक, अति नुकसान कारक सिद्ध होता है। तो जो टेम्परेरी मर्यादा होती है उससे शॉर्ट टर्म गेन महसूस होता है कि मैं बॉस बन गया, लेकिन बाबा कहता है तुम थोड़े समय के लिए बॉस बन भी गए तो सदा काल के लिए तुम दास बन गए। इसलिए हमें ध्यान रखना है। कोई कुछ बोलता है तो बहुत योग की दृष्टि से बाबा को याद करके ये आत्मा इस समय अपने कंट्रोल में नहीं है, इसको अभिमान ने कंट्रोल किया हुआ है, मनमत ने कंट्रोल किया हुआ है, उसको शांति की दृष्टि देनी है, लेकिन उसको टीच करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उस समय वो आत्मा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कई बारी ऐसी आत्मा को शांति से बाबा की याद में दृष्टि देने की बजाय कोई हम मुस्कुराने लग जाते हैं, जिसके उसको लगे कि मैं उसकी गलती को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ऐसा काम हमें आग में घी डालने का नहीं करना है। शांति में रहकर पावरफुल ऐसा वाइब्रेशन दें कि उसके इर्द गिर्द एक स्पिरिचुअल सर्कल क्रिएट हो जाए, वो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में वापस आ जाए। आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए कम से कम हम तो सेफ रहेंगे। Okay. Let me ask a follow-up question, because the BKs who are sending these are feeling a little alone with their situation. So they ask one more question, which is, when a situation arises among factions of the BK family in a country that involves consistent abuses of power by an NC and widespread fear among the family, can the BK family seek help from seniors in the yagya in other countries? ये बहुत नाजुक प्रश्न है, ये बहुत नाजुक सिचुएशन है, क्योंकि हमारी ये भी मर्यादा है कि हम किससे सहयोग लेना चाहिए, अदर कंट्री से हमारा क्या भाव है और किससे लेना चाहिए। कई बार लोग ये समझने लग जाते हैं कि मैं उसी से सहयोग या गाइडेंस ले रहा हूँ जो मेरी फेवर में डिसाइड करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोगों के एनसीज के ऊपर आरसीज हैं, तो अपने अपने आरसी से गाइडेंस लें, और अगर किसी और से लेने की आवश्यकता है तो आरसी अगर उसको अप्रूव करता है कि हाँ इस मामले में आप इसको मेडिटेटर बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, चारों तरफ की बस चीजें देखकर सिचुएशन, तभी किसी दूसरे कंट्री में बात करना चाहिए। नहीं तो हर एक एनसीओ के ऊपर जो आरसी है वही प्रॉपर चैनल है इस बात के लिए।
Okay, so they should stay within their region. Everyone knows their RCs, I think. So, all right, I want to move to the other side now because the instruments also feel sometimes that they are without guidance. So I've got two questions here. One of them, how much does the instrument need to listen? Many people feel that the only way to move forward in their spiritual lives is to continually talk about their issues and feelings. And I would also say write about them, right? So write big, long messages and talk about their feelings as well. They insist on being heard and they speak of the same things over and over, often in a very critical way. How much do instruments need to listen to souls about what they're going through? And how do we listen to so much of this and remain unaffected? Do you understand the question? हाँ जी, देखिए, जो लास्ट लाइन है आपने जो बोली है कि अनअफेक्टेड, वो तो हर एक को, हमको हर स्थिति में रहना, ये हमारा लक्ष्य है। चाहे कोई कितना भी वेस्टफुल टॉक करता है, यूजलेस करता है, हार्मफुल करता है, वो ड्रामा है। क्लाउड्स आएंगे, स्टॉर्म्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात पे हमें सोचना चाहिए, अगर हम ही अफेक्टेड हो गए, जिन्होंने दूसरों को स्टेबल बनाना है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे। इसलिए पहली बात तो ये है कि जो बाबा के पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जिनको बाबा ने रखा है, बाबा ने कहा अगर कुछ ऐसा आ भी जाए मुझे दे दो। रिसेंटली एक मुरली में बाबा ने कहा है कि ओशन दो काम करता है। जितना ओशन के अंदर रबिश फेंका जाता है, वेस्ट फेंका जाता है, ओशन सारे को अब्जॉर्ब कर लेता है। मैं सोच रहा था वर्तमान समय 850 करोड़ आत्माएं ओशन में कचरा फेंकती रहती है। 850 करोड़ डेली। अगर सिटीज में देखें, टाउन्स में देखें तो लिटर बहुत रहता है। बेचारा ओशन जो है फाइनली उसमें जाके कचरा ही कचरा फेंकते रहते हैं और कुछ नहीं करते। फिर भी ओशन अपनी वेव्स के द्वारा उस सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से जो भी कोई कचरा हो, हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए या तो उसको जलाने की और या उसको समाने की। इसलिए हम लोग इन्फ्लुएंस तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस होता है वो इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता। तो हमें हमारा रोल है इन्फ्लुएंस करने का, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ना कि उसकी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेने का। यहाँ पर वाटर और फायर दो चीजों के दो एलिमेंट हैं जो क्लीनिंग करते हैं, लेकिन वाटर क्लीनिंग करता है, खुद डर्टी हो जाता है। फायर क्लीनिंग करता है, खुद वैसे का वैसा ही रहता है। इसलिए अब हमें अपना ज्वालामुखी रूप, फायर वाला रूप इमर्ज करना है। दूसरी बात लिसनिंग की बात है। अब बाबा कहता है कि मैं तीन चांसेस देता हूँ हर चीज के लिए। 3 चांसेस देता हूँ। चाहे कोई प्रतिज्ञा करता है, चाहे कोई अपने साथ प्रॉमिस करता है, चाहे बाबा की कोई डायरेक्शन आता है, फरमान आता है, श्रीमत आता है, या कोई सीनियर आता है, या कोई गलती करता है, तो उसको 3 चांस दिए जाते हैं कि मैक्सिमम 3 बार हम उसको लिसन कर सकते हैं और वही बात रिपीट कर रहा है और क्रिटिसाइज कर रहा है, विच मीन्स कि ड्रामा के ऊपर नहीं है। ड्रामा क्या कहता है? ड्रामा कहता है कि हर चीज एक्यूरेट है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट एज पर ड्रामा। तो मेरे को कोई मार्जिन नहीं है कि मैं किसी बात को क्रिटिसाइज करूं, ऐसा क्यों, क्वेश्चनिंग करूं।
क्योंकि भगवान ने हमको बिंदी लगा दी है। इसलिए जस्ट 3 बार एक व्यक्ति को लिसन करने के बाद हमें ये कहना चाहिए कि हमने आपकी बात काफी सुन ली है, अब आप मेडिटेट करो, बाबा के कमरे में जाओ, मुरली के ऊपर मंथन करो। उस बात को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। Okay, listen 3 times and then invite them to go and reflect, right? And don't be affected no matter what. Okay. I want to move over to the side, well, I want to continue on the side of the instrument. So in some cases, situations have developed in which some of the BKs in a country become discontented with their NC and begin to create an alternate or parallel structure to the official one sanctioned by the RC. This involves such things as undertaking activities in secret without informing the NC, or inviting some BKs to meet with a senior in another country, again, without informing the NC. In a case such as this, when the NC or NCT feels they tried to work with those BKs in all reasonable ways, is it then reasonable to take more drastic measures, such as not allowing the BK to do service? Where does an NC who is trying to manage a situation such as this get reliable support and guidance? Do you understand the question? हाँ जी, बात यह है कि प्रैक्टिकल में जब कोई एनसी चलाता है अपना सेवा को, तो उसके आगे अनेक प्रकार के इस प्रकार के सिचुएशन आते हैं, और हर एक सिचुएशन डिफरेंट होता है दूसरे से। और अगर हम उन सिचुएशन को अर्ली सॉल्व नहीं कर लेते, रिजॉल्व नहीं कर लेते, तो फिर वो फैलता है। जैसे कि रोग फैल जाता है तो फिर वो संगठन बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, फिर उनमें ताकत आ जाती है कि हम क्यों ना कि पैरेलल सेटअप कर लें, हम भी सेवाधारी हैं, हम एक अपनी अपनी सेवा करना शुरू कर दें, आदि आदि। तो उससे ये सारी सिचुएशंस स्टार्ट हो जाती है। अब जहां तक ये ड्रास्टिक मैयर बताए गए हैं, क्या दूसरे को सेवा ना दें इत्यादि इत्यादि, ये एक बहुत बाद की स्टेज है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि आरसी, क्योंकि आरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे एनसीज की, सारे एरिया को ठीक ठाक रखने की। आरसी अनुभवी भी होते हैं, और आरसी को अगर आवश्यकता पड़े तो किसी दूसरे आरसी से या इंटरनेशनल आरसी जो हैं कोऑर्डिनेटर, उनसे राय कर सकते हैं। तो इसलिए इस ऐसी सिचुएशन को अराइज ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी काम आप सक्सेसफुली भी कर लेते हैं एक ग्रुप बनाकर नॉर्मल सिस्टम के बाहर, तो सफल नहीं होता। उसको हम स्प्लिंटर ग्रुप कहते हैं, क्योंकि बाबा के यज्ञ का नियम है यूनाइट करना, ज्वाइन करना, ऐड करना, क्योंकि छोटा बड़े में ऐड होता है तो बड़ा बन जाता है। हमारे यहाँ देखिए सारा ब्रह्मा कुमारी की इंटरनेशनल यूनिटी क्यों प्रसिद्ध है? हमने छोटे को बड़े से, बड़ों को बड़े से, नेशंस को इंटरनेशनल ज्वाइन किया हुआ।
दुनिया में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संसारिक नहीं है जो इस प्रकार से फंक्शन करे। इंडिपेंडेंस भी है और यूनिटी भी है, पर हमने किया हुआ बाबा के बच्चे हैं, इसलिए कोई भी चीज जो डिवाइड करे, जो स्प्लिंटर ग्रुप बनाए, क्या होगा कि इंडिविजुअल एक ब्रांच हो जाएगी, तो ब्रांच अपने आप को कहाँ तक सस्टेन करेगी, कट होके। जैसे फ्लावर को कट कर लो आप, वास में लगा लो, कितनी देर वो रहेगा फ्रेश। इसलिए हमें अपने रूट्स को ज्वाइन करना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स हर जगह आती हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल के कारण हम सेपरेशन ना करें, ऑब्स्टेकल को रिजॉल्व करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे तरीके समय पर आरसी उस सारी सिचुएशन को अच्छी तरह समझकर, एनसी के जो होते हैं, मुझे पता नहीं कि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है या एनसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी सिचुएशन हो उसको आरसी अपने आरसी दूसरों से मिलकर भी हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो भी इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन एक अलग होती है, उसमें कोई कट एंड ड्राई एक फार्मूला नहीं लगाया जा सकता। Okay, so let me make sure I'm following. So to the ones who are creating a parallel structure or breaking away, you're saying to value the benefit of unity, to realize that staying close to the family is really important. To the NC looking for guidance, you're referring them to their RC for guidance. What if the faction feels they are being sent away? Not that they're breaking away, but they feel that the NC has said to them, you no longer belong here for whatever reason. We feel you have made some mistakes and we don't want you in this family anymore. We want you to either move out of the center, go off, be away. What do the students do then? मैं समझता हूँ कि जहां तक सेंट अवे है, ये एक या दो इंडिविजुअल में उनकी कुछ एबनॉर्मल व्यवहार के कारण, उनके कुछ मेन स्ट्रीम बात को डिस्टर्ब करने के कारण हो सकता है। वो भी हम लोग टेम्परेरी करते हैं कि भाई आप टेम्परेरीली तपस्या करो, ये करो, अपने संस्कार को इम्प्रूव करो ताकि आपको डिफिकल्टी महसूस ना हो। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप अगर ये समझे कि उनको सेंट अवे किया जा रहा है, क्योंकि उसमें तो शक्ति होती है, और सत्यता के ऊपर बाबा ने 2 मुरलियां वरदान ताजा ताजा दिए हैं कि सत्यता की शक्ति क्या होती है। और हमारी तो हर चीज में सत्यता है, हम सत्य परमात्मा के द्वारा हमारा सब सेट है, और उसके द्वारा हमें एक तो खुशी मिलती है और एक निर्भयता मिलती है, बाबा ने कहा। तो निर्भयता उस तरह की नहीं कि हम किसी को कॉन्फ्रंट करके उसके सामने खड़े हो जाएं, मतलब हम किसी से अंदर से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारी रूट जो है यज्ञ के साथ है और सीड हमारा बाबा है। अब तो बाबा ने क्या रखा है, लास्ट तक भी मैं चाहे अव्यक्त तरीके से, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपने यज्ञ को सस्टेन करता रहूंगा। अभी तो कुछ नहीं है, आगे आप देखेंगे, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि बहुत खतरनाक नाजुक टाइम आने वाले हैं जहां ये सब नॉर्मल सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उसमें भी बाबा ने कहा है कि मैं आपको जो होता है प्योरिटी के द्वारा, पवित्रता की जो शक्ति है उसके द्वारा मैं तुम्हारा कम्युनिकेशन कराऊंगा, तुम्हें प्री मनुष्य होगा कि ये होने वाला है, सब करूंगा। उसके लिए हमारी बाबा ने कहा होगा
क्लीन एंड क्लियर। तो हमें अपने माइंड को क्लीन रखना है, क्योंकि अगर हम एक भी चीज इस प्रकार की छेड़ लेते हैं तो हम कुछ भी कोशिश करें, सारा दिन और बातों के हटकर हमारे मन में यही आ जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट, ये मैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं। तो शक्ति उसमें नहीं रहती। शक्ति तब रहती है कि हमारे अंदर सत्यता हो। तो सत्यता वाले को तकलीफ नहीं होती। सत्यता वाला ये नहीं समझता कि इंस्ट्रूमेंट मुझे सस्टेन कर रहा है। सत्यता वाला समझता है कि परमात्मा मुझे सस्टेन कर रहा है। इसलिए कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर लोगों को थ्रो अवे किया जाता है, सेंड अवे किया जाता है, धक्का भी मारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के टेम्पल्स में बहुत भीड़ होती है, और भारत के टेम्पल्स में आप जानते हैं कि पैसे वाले के लिए शॉर्ट की लाइन होता है, लेकिन जो पक्का भगत होता है उसको उसने वो समझता, मुझे 4 बार भी धक्का मार दोगे, मुझे तो इस डीटी का दर्शन करना ही है। उस धक्के को वो कोई धक्का नहीं गिनता, वो समझता है कि ऐसे किसी ने उसको फेदर टच किया। इसी प्रकार से अगर हर व्यक्ति ये समझे कि बाबा का घर है ये सेंटर किसी व्यक्ति का नहीं है, उसमें इंस्ट्रूमेंट कई तरह के आ सकते हैं। कई हॉस्पिटल में भी ऐसे डॉक्टर आ जाते हैं जो प्राण बचाने की बजाय प्राण निकलवा देते हैं। तो हर एक को पता होता है, परंतु ऐसा तो नहीं कि सारे ही ऐसे होते हैं। बाबा तो वहां बैठा है, आप लोग आपस में तो वहां बैठे हैं। आप मेडिटेशन के वक्त पावरफुल, बिल्कुल कल्याण के वाइब्रेशन दे सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई थ्रो अवे भी करे। बाबा ने भी कहा था कि अगर मान लो कोई आपको यज्ञ से निकाल दे, बाहर स्ट्रीट में डाल दे, क्या करोगे। तो जो पक्के बच्चे थे वो कहते, बाबा हम तो तेरे द्वारे पर ही रहेंगे, बाहर निकाल दो तो भी हम वही रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कोई थ्रो अवे नहीं कर सकता। वो बाहर जाके कोई सेपरेट ग्रुप बनाए, क्योंकि रोज रोज का मामला है। आरसी भी कहाँ तक आ सकता है। आरसी एक बारी जो कर देगा, 2 बारी कर देगा, 3 बारी हेल्प कर देगा। तो हमें हर एक को सेल्फ सस्टेनिंग, पावरफुल, इंडिपेंडेंट, ट्रूथफुल, क्लीन एंड क्लियर बाबा से कनेक्टेड रहना चाहिए। बाबा आपको योग में बैठे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा सकता है। उस वक्त आपको महसूस ही नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट कौन है और कहाँ और क्या है। इस प्रकार से शक्तिशाली वातावरण बनाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वातावरण। अब कोई व्यक्ति वातावरण को खराब कर रहा है, अब मान लीजिए कहीं फाउल स्मेल आ रहा है, तो उसका इलाज क्या है कि हम वातावरण को इतना पावरफुल फ्रेग्रेंट बनाएं कि वो फाउल स्मेल इनफेक्टिव हो जाए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं रहकर कर सकते हैं। हम ये ना समझें कि हम दूसरी जगह, क्योंकि जो ही हम गए तो हम फिर एक प्रकार से सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह का हर एक चीज की सिचुएशन है, पर मेरी ये फीलिंग है, मेरे साथ पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है कि ऐसा कुछ हो गया था वातावरण कि कई वर्षों तक मैं कट ऑफ सा रखा जाता था। मैं किसी दूसरे गेट से मेरी एंट्री होती थी, आदि आदि। पर मैंने सोचा कि बाबा है, मैं बाबा का हूँ, वन डे ये सारा प्रॉब्लम आप पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैंने देखा लेटर ऑन, जितने जो लोग मेरे को अलग आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो मेरे से ही सहयोग मांगने लगे। और जो मेन इंस्ट्रूमेंट था उसको उन्होंने कुछ कुछ बोल रखा था, वो इंस्ट्रूमेंट मेरे से पूछे बगैर कुछ करता ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपना पावरफुल कनेक्शन बाबा से नहीं छोड़ा, अपनी धारणा को नहीं छोड़ा और उस स्थान को भी नहीं छोड़ा। जी, आप विल पावर इतने हमारे स्ट्रांग है, ऊपर बाबा बैठा है, हमें संसारिक तरीके अख्तियार नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट सेंटर का सिस्टम ही ये है कि कुछ बाबा के बच्चे ज्वाइन करके इकट्ठे होकर के मुरली सुनाने का प्रबंध करते हैं, उसको सेंटर कहा जाता है। ये टॉप टू बॉटम नहीं है, ये बॉटम टू टॉप है। इसलिए हर एक सेंटर ऑर्गेनिकली ग्रोथ करता रहा। तो हम उस अपनी वैल्यू समझें, सेंटर की समझें, कोई नियम का उल्लंघन न करें। कोई इंस्ट्रूमेंट कोई आ भी जाता है, वो खुद ही फील करे
कि मेरे अंदर ये कमी है, ये लोग ठीक है, उसके अंदर खुद रियलाइजेशन आए। Okay. Well, every time you give an answer, Brother Brij Mohan, you're generating more questions. There are lots of questions in the chat. So I just want to say to all of us in this virtual meeting that we are keeping your questions and we will look at them. And when we have our next session, we will fold these questions in. I think what you're feeling from Brother Brij Mohan is he's never going to answer you at the secular level. He's never going to come down and tell you mundane things. He's always going to refer you to Dada's guidance for his Sekila Day children. And so we have to come up and meet him as well. So, Sister, excuse me, I want to speak. Brother I want Bridgman, to speak. I want to give two examples. One was about, do you want to give them in Hindi? हाँ, beg Do your you pardon, want हाँ, भारत में एक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अब ब्रह्मा कुमारी ने उसके साथ गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कर लिया है। अब बेचारे ब्रह्मा कुमारी जगह जगह जाके सारे भारत में नशा मुक्ति करवा रहे हैं। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि देखो, गवर्नमेंट ने नशा की शॉप्स खोली हुई हैं, गवर्नमेंट ने वाइन बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है, गवर्नमेंट सारे नशे तैयार करती है, उस पर बहुत टैक्स लगाती है, और पब्लिक को दिखाने के लिए एक दिन दुनिया में नशा मुक्ति हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे, हम लोगों की बहुत सेवाएं वो यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो जितनी भी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई यूज ना करे, हम अपने जिससे जहाँ कुछ लाभ निकलना हो हम वो काम करें। अब अभी आप बहन जी जो बात कर रही थी, क्या बात कर रहे थे आप? हाँ, तो दादी जानकी जी ने एक बार मुझे बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि आपको खुद फैसला, हमें नहीं बताना किसी को, क्योंकि हम कुछ बताते हैं तो हमारी लेवल का होता है, दूसरे की समझ में नहीं आता, उसको आप ऑप्शन दे दो, अपने आप डिसाइड करें। तो दादी जानकी ने कहा था, लंदन में एक भाई जॉब करता था और उसकी सैलरी बढ़ गई। अब उसके पेरेंट्स इंटीरियर में रहते थे, उनको पता लगा, उनको कुछ पैसा वो भेजता था मेंटेनेंस के लिए। उन्होंने कहा, अब तेरी सैलरी बढ़ गई है, अब तुम ज्यादा पैसा हमें भेजा करो। वो दादी जानकी के पास आया, तो दादी जानकी ने कहा, देखो फैसला तुमको करना है, ये देख लो कि तेरा मोह ना बढ़े और उनका लोभ ना बढ़े। दैट वाज द आंसर, कि तेरी तनख्वाह बढ़ी है तो पेरेंट्स हैं मेरे लौकिक, इसलिए वो बढ़ के ज्यादा दो, या उनका लोभ बढ़े कि इसकी तनख्वाह बढ़ गई इसलिए हमको ज्यादा पैसा दो, डिसीजन तुमने लेना। इसलिए जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, बिकॉज हम सिचुएशन को प्रैक्टिकली एग्जैक्ट सिचुएशन को पूरी तरह नहीं जान पाते, इसलिए हम जनरलाइज करके बोलते हैं ताकि आप उसमें से जो आपके काम का उठा लें। Okay, very rich. I have lots of other questions to ask you, Brother Brij Mohan, but we're out of time. So those who have written in the chat, just know that we will pull your questions in and we'll share them with Brother Brij Mohan next time. Also, would you let us know if you preferred this speaking in Hindi? It was a little more complicated of my end. But if it worked for you, then we'll continue to do that. And give us the feedback. We're continuing to try to refine these conversations. But huge gratitude, Brother Brij Mohan. Thank you so much for taking up these questions. Thank you so much. Om Shanti. All right, everyone, and thank you. Shall we close with a minute of Baba's Yad? Let's Yes. do that.
Thank you, everyone. Om Shanti. Next session, August 16th.